تحریک انصاف کی طرف سے کل پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں بھی جگہ جگہ احتجاج ہوا۔ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا احتجاج، اس کے مظاہرے سارے ناکام ہو گئے۔ ہم نے اس کو ناکام بنا کے رکھ دیا۔ لاہور میں یہ صورتحال تھی کہ پولیس ٹولیوں میں کھڑی تھی، تحریک انصاف کی ریلیاں بھی نکل رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پہ پولیس ہے وہاں سے بچا کے گزر جائیں۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے۔ پولیس والے تحریک انصاف کی ریلیوں سے ڈر رہے تھے اور تحریک انصاف والے پولیس سے ڈر رہے تھے۔ دونوں کی خواہش یہ تھی کہ آمنا سامنا نہ ہو، اور تحریک انصاف والے اس مشن میں کامیاب ہو گئے کہ ان کا آمنا سامنا پولیس کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہوا، اور پولیس بھی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی کہ کہیں بھی انہوں نے تحریک انصاف کا سامنا نہیں کیا۔ اگر ان کو کہیں پہ تحریک انصاف والے آتے نظر آ گئے تو پولیس والے چپکے سے دبکے سے ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو جانے دیا گیا۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ پورے پاکستان میں وہ کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہوا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے پہلے تحریک انصاف احتجاج کیا کرتی تھی اس طریقے سے اس نے احتجاج نہیں کیا۔ کوئی بہت بڑی ریلی نہیں ہوئی۔ ریلی اگر ہوئی ہے تو چند لوگوں پر مشتمل ہوئی ہے، کہیں پہ 10 لوگ تھے، کہیں پہ 12 لوگ تھے، تاکہ بڑے اجتماع کا گمان نہ ہو کہ پولیس کو وہاں پہ کارروائی کرنی پڑے۔ تو پورے ملک میں کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہوا؟ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا مسلم لیگ نون والے اگر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو پنجاب میں بھرپور احتجاج ہوتا ہے، لیکن کراچی میں کوئی بندہ نہیں نکلتا، خیبر پختونخوا میں کوئی بندہ سامنے نہیں آتا، بلوچستان میں تو بالکل مسلم لیگ نون کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوا کرتا تھا جب یہ احتجاج کیا کرتے تھے۔ لیکن تحریک انصاف کا یہ جیسے جماعت اسلامی کو لے لیں، وہ بھی پورے ملک میں احتجاج کرتی ہے، ان کے کہیں نہ کہیں پہ لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، یا کوئی بھی پارٹی ہے جو پورے ملک میں احتجاج کر سکے یا پورے ملک میں اپنی نمائندگی ظاہر کر سکے۔ یہ واحد تحریک انصاف پارٹی ہے جس نے پورے ملک میں جتنا بھی ہو سکا ہے، انہوں نے ہر شہر میں احتجاج کیا ہے، ان کے لوگ سامنے آئے ہیں۔ باقی جماعت اسلامی کی بات ہے وہ اس کا سائز کتنا ہے، اس کے باوجود وہ پورے ملک میں اپنی نمائندگی، اپنی موجودگی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ تحریک انصاف کا احتجاج ناکام بنا دیا گیا ہے کہ ان کے روایتی بیانات میں سے ایک بیان ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تحریک انصاف کا احتجاج ہوا ہے، زبردست احتجاج ہوا ہے، بلکہ دنیا بھر میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کا جس طرح سے اعلان کیا گیا اور جس طرح سے اہتمام کیا گیا، یہ 3 اگست سے وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ 3 کو ہوا، 4 کو ہوا، 5 کو ہوا، اور کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ آج بھی احتجاج کیا جا رہا ہو۔ باقی عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 5 اگست کو پیک سے ہم احتجاج کا اہتمام کریں گے، احتجاج کا آغاز کریں گے۔ تو اس کے بعد احتجاج کیا آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، اور یہ جاری رہے گا۔ لگتا ہے کہ تحریک انصاف والے ایک دن پورا زور لگا کے تھک گئے ہیں، 2-4 روز وہ اپنے آپ کو تھوڑا ریسٹ دیں گے، وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر یہ میدان میں نکل آئیں جیسا عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ لیکن سر دست نظر نہیں آتا کہ تحریک انصاف والے اس تحریک کو پیک سے شروع کر کے چلاتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان اپنے ملنے والوں کو اس بارے میں مزید کیا بریف کرتے ہیں۔ بریف کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی طرف سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 5 اگست کو احتجاج پیک سے شروع ہوگا، یعنی عروج سے شروع ہوگا، اور وہ وہیں پہ پھر چلتا رہے گا، یعنی کہ پھر اس سے نیچے آ جائے، کم ہو جائے۔ یہ تو عمران خان کی خواہش تھی کہ دیکھتے ہیں کہ پھر تحریک انصاف والے عمران خان کی اس خواہش کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ تو باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ضرور رہا ہے، لیکن اس کا پاکستان کو، تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ کا مطلب اگر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جانی تھی، تو ایسا سوچنے والے میرا خیال ہے کہ درست نہیں سوچ رہے۔ دنیا کو یہ باور کروانے کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو مجھے ایک ظلم خلیزات کا ٹویٹ بھی نظر آیا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس فسطائیت کے دور میں عمران خان کی گرفتاری کو، ان کے قید کیے جانے کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ظلم خلیزات کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کے حق میں بات کی ہے۔ ظلم خلیزات عموماً عمران خان کی حمایت میں کچھ نہ کچھ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پاکستان اور ان تمام لوگوں کے لیے افسوسناک دن ہے جو قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان کی بے بنیاد الزامات پر قید کی 2ری سالگرہ
मुल्क के मुस्तकबिल पर साया डाल रही है और इसकी कामयाबी के इम्कानात को कमज़ोर कर रही है। इतनी बेरहमी और नाआक़बत अंदेशी क्यों? ये वक्त कौमी मुफाहमत का है। इमरान खान की रिहाई और कानून की हुक्मरानी लाज़िम व मलज़ूम इक़दामात हैं। उन्होंने अपने इस ट्वीट को टैग किया इमरान खान को। इससे पहले उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह इमरान खान को पाकिस्तान में गिरफ्तार करके रखा हुआ किस तरह की फस्तायत है। उन्होंने ट्वीट में टैग किया था डोनाल्ड ट्रंप को। बाकी जिस तरह से ट्रंप साहब हर मुल्क को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आजकल उनके शिकंजे में आया हुआ इंडिया के हवाले से उनके जारहाना बयान सामने आ रहे हैं। कभी उन पर टैरिफ में इजाफा कर दिया जाता है, कभी उनको धमकी दी जाती है, कभी यह कह दिया जाता है कि देखें मोदी के साथ हमने कितना ज़्यादा एहसान किया, कितना ज़्यादा उनको हमने फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन उन्होंने शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। और उसके साथ साथ फिर ट्रंप की तरफ से जिस तरह से फिर रूस के हवाले से बात की गई, यूक्रेन के हवाले से बात की गई, कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, वो जंग में रूस की मदद कर रहा है, रूस के साथ खड़ा हो गया है क्योंकि अरबों डॉलर का उसने रूस से तेल खरीद लिया है, पेट्रोल खरीद लिया। इसके साथ ट्रंप की तरफ से कहा गया कि एक तो भारत अपनी ज़रूरियात के लिए रूस से तेल खरीद रहा है और दूसरा भारत उस तेल को रिफाइन करके आगे अरबों डॉलर में बेच भी रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। और फिर मोदी भी ट्रंप को पड़ गए। हमारी तरह नहीं है कि इधर ट्रंप का बयान आ गया और उधर हमारी क़यादत भीगी बिल्ली बन के रह गई। लेकिन आजकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के मामलात हाथ में हैं, तो वो हर बात का कोई भी पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई बात करता है, कोई अग्रेशन दिखाता है, तो वो उसको उसी जुबान में उसी तरीके से उसी अग्रेशन के साथ जवाब देते हैं। बात हम कर रहे थे ट्रंप की कि उन्होंने जिस तरह से मोदी को धमकी दी, इंडिया को धमकी दी, तो मोदी भी उनको उसी तरीके से पड़ गए। मोदी की तरफ से कहा गया, उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप हमें कह रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, जरा यूरोपीय यूनियन की तरफ भी देखिए, वहां पे कितने अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीदा जा रहा है। आप हमारी बात कर रहे हैं, जरा उनकी भी खबर लीजिए, अपनी भी खबर लीजिए। और इस पर हैरान को नंबर यह है कि मोदी की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया, लेकिन इंडियन फौज की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। जरा थोड़ा पीछे चले जाएं, जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाना था, इससे पहले इमरान खान रूस के दौरे पर गए थे और ये जंग छिड़ने वाली थी। उसके बाद इमरान खान वापस आते हैं तो इमरान खान की तरफ से एक बयान दिया गया था। वो एक अलग इशू है कि इमरान खान को इसी दौरे की वजह से अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़े थे, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जब इमरान खान दौरे से वापस आए हैं तो उनकी तरफ से इस जंग के हवाले से गैर जानबदार रहने का बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ना हम रूस की हमायत करते हैं, ना हम यूक्रेन की हमायत करते हैं। तो जंगों के हवाले से इमरान खान का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि जंगें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके दूसरे रोज जनरल बाजवा की तरफ से बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया गया कि रूस की तरफ से ये यूक्रेन पर जारहियत की गई है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे हैं और आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे हम ले चले बात को इसी तरह भारत की तरफ, मोदी की तरफ से अमेरिका को ठोक के जवाब दिया गया है। इसी तरह से इमरान खान की तरफ से भी ऐसा किया गया था, लेकिन जनरल बाजवा साहब उछलते हुए सामने आए। उनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने जो कुछ कहा था उसकी नफी कर दी गई थी। तो इमरान खान को इस मौके पर, जैसे इमरान खान कहते थे कि मेरा आर्मी चीफ अगर कोई गलत बात करेगा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, इमरान खान की तरफ से इस मौके पर जनरल बाजवा को सैक कर दिया जाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कोई भी आर्मी चीफ इस तरह से अपने वजीर आजम के किसी बयान की नफी करने की जुर्रत करता। लेकिन इमरान खान की तरफ से उस मौके पर मसलत से काम लिया गया, क्योंकि शायद वो ये देख रहे थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, लेकिन ये पेज जल्द ही फट गया। बल्कि इस मौके पर वो पेज फट चुका था और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने के लिए जनरल बाजवा की तरफ से जो कुछ भी किया जा सकता था वो कर रहे थे और फिर आखिर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके ही रहे। बात हमने शुरू की थी कि भारत की तरफ से भी अमेरिका को जवाब दिया गया है, लेकिन उनकी फौज बिल्कुल ही खामोश है। बात शुरू हुई थी यूक्रेन की, और यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कुछ जनूबी अफ्रीका के मुमालिक वो रूस का साथ दे रहे हैं जंग में। इस पर हमारी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक भरपूर तरदीद की गई है। उन्होंने यूक्रेन
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का शायद बयान पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। जैसे उनके सामने बयान आया उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत उनकी तरफ से बयान दिया गया है। हालांकि उनके बयान को गौर से पढ़ने की जरूरत है और उस पर तरदीद करने की नहीं बल्कि उस पर तहकीक करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की की तरफ से इन मुमालिक के नाम लिए गए। उन्होंने ये कहा कि इन मुमालिक से तल्लक रखने वाले किराए के फौजी, मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूं कि इन मुमालिक से तल्लक रखने वाले किराए के फौजी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किराए के फौजी क्या पाकिस्तान किसी को फराहम करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। दाश के हवाले से हमारे सामने है कि किस तरीके से पाकिस्तान से भर्ती हुआ करती थी उनको किराए के फौजी कहते हैं। पाकिस्तान से अगर किसी तंजीम की तरफ से इस तरह के लोग फराहम किए गए हैं रूस को, हो सकता है कि उसी तरह से जिस तरह से दाश के लिए यहाँ से लोग गए थे, इसी तरह रूस के लिए भी कुछ लोगों ने, कुछ तंजीमों ने या यहाँ पे कार फरमा कुछ NGOs की तरफ से या जो भी है उनकी तरफ से हो सकता है कि रूस को ऐसे लोग भिजवा दिए गए हों जिसका हुकूमत को बिल्कुल भी इल्म ना हो। इस हवाले से ज़ेलेंस्की के बयान की पूरी तरह से तहकीक करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी सियासतदान चवलें मारते हैं। ख्वाजा आसफ साहब खुद भी सियासतदान हैं, इनके अब्बा जी भी सियासतदान हुआ करते थे। जनरल ज़ियाउल हक के वो इंतहाई ज़्यादा करीब थे, बल्कि उनकी जो मजलिस शुरा थी उसके सरबराह बनाए गए थे। इनके वालिद जनाब ख्वाजा सफदर साहब, और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि सियासतदान चवलें मारते हैं। तो ये इंकशाफ इन्होंने किया है। मेरा ख्याल है कि आपके सामने छोटी सी खबर है, मुकम्मल रख देनी चाहिए कि इन्होंने किस तरह से कहा कि सियासतदान चवले मारते हैं। और ख्वाजा आसफ साहब फार्म 47 पर आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं और एक खातून से डर के, रिहाना डार से हारने के बावजूद ये वज़ीर दिफा बने बैठे हैं और ये सियासतदानों को कह रहे हैं कि ये चवले मारते हैं। तो ख्वाजा साहब ऐसी बातें करते ही रहते हैं। देखते हैं कि इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो कैसा फरमान है। वो कहते हैं कि वतन अजीज़ की आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। ये ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत की तैयारी कर रही है, मगर अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। बुजदार के एक करीब 3 ब्यूरोक्रेट ने 4 अरब रुपए बेटों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल की, अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लाट है ना गैर मुल्की शहरियत है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। ख्वाजा साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया आप खुद उसमें से तलाश करने की कोशिश करें कि ख्वाजा साहब किस मामले में चवल मार रहे हैं, किस मामले में इंकशाफ कर रहे हैं और किस मामले में वो दुरुस्त कह रहे हैं। उनको नज़र आ गया बुजदार का ब्यूरोक्रेट, बुजदार भी सामने है, बुजदार ने करप्शन की है, बुजदार के ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की है, तो उसको पकड़े। सियासतदानों को उन्होंने बिल्कुल बेगुनाह साबित किया है कि सियासतदान तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी लंदन में कहाँ से आ गई? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, और कितनी प्रॉपर्टी उनकी पाकिस्तान में है। इसी तरह से जनाब आसफ अली जरदारी साहब का सरे महल और फिर उनका वाइट क्वीन महल फ्रांस में, वो कहाँ से आ गया, कहाँ से प्रॉपर्टी आ गई? तो ख्वाजा आसफ की तरफ से ये कहना कि सियासतदान बिल्कुल बच्चे हैं, बचूंगड़े हैं, मासूम हैं। तो नाजरीन आप खुद अंदाजा कीजिए कि आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो बाकी देर आए दुरुस्त आए इसको कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है बड़ी देर की मेहरबान आते आते हसीना बांग्लादेश से फरार होकर इंडिया में बैठी हुई हैं, तो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक सेटअप बना दिया गया जो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब कहा जा रहा है कि अगले साल फरवरी 2026 में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाते तो बेहतर है। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाते तो बेहतर था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था हसीना वाजिद हसीना शेख की हमायत में लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल वहाँ पे भी
ایسی ہی فسطائیت ہے جیسی اور کئی ممالک میں موجود ہے۔ اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو حسینہ واجد کو کون آگے آنے دے گا، کون ان کو الیکشن لڑنے دے گا؟ ان کو تو نااہل قرار دے کے پہلے ہی بٹھا دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا، سب سے بڑا وہاں پہ ظلم ہوگا اور یہ غیر سیاسی اقدام ہوگا، کیونکہ حسینہ واجد کو بھی پورا حق ہے ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اگر ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس الیکشن کی کیا ساکھ ہوگی، وہی ہوگی جو 8 فروری 2024 کو ہمارے الیکشن کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔